Hello students, welcome to the online lecture of Future Foundation Academy. In previous lecture, we have started respiratory disorders. We are studying different types of respiratory disorders and we have completed what is meaning of asthma and second one is emphysema. I would like to tell you one thing, asthma, emphysema, जो भी respiratory disorder हम study कर रहे हैं, कॉमनली बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम एक साथ सीओपीडी कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एम्फाइसेमा के लिए वर्ड यूज किया था, दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स. इवन एस्थमा, सेकंड वन इज एम्फाइसेमा, और आज जो हम स्टडी करने वाले दैट इज ब्रोंकाइटिस. ऑल दिस डिसीजेस कम्स अंडर सीओपीडी. सो आवर थर्ड डिसीज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस. We have discussed this before. जब भी itis ये word आएगा, itis, it means infection. So bronchitis is representing infection of bronchi. So I can say it is infection, that is inflammation of bronchi. And bronchitis can be of two types, that is acute bronchitis and chronic bronchitis. See, अगर bronchitis, bronchial infection टेम्पररी है, बहुत कम टाइम के लिए जल्दी से रिकवर हो रहा है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज एक्यूट. एंड इफ इट इज लॉन्ग लास्टिंग, it takes time to cure and it makes a major damage, that time it is called as chronic bronchitis. acute मतलब जो जल्दी से ठीक हो जाएगा and chronic means थोड़ा सा severe है, it can be dangerous, even it can be an onset of pneumonia. bronchitis future में जाकर pneumonia में भी turn out हो सकता है. Now see, what is actually bronchitis? We know the respiratory tract, suppose this is tracheal tract, then it will form bronchi and then lung will be there. जब ये bronchi divide होंगे, primary, secondary, all these are bronchi, end में जाकर कहीं तो भी alveolar होगा. From here to here, whatever bronchial tree is there, इसमें कहीं भी infection होगा. It can lead to swelling, and we have studied in emphysema. Suppose this is bronchi, अगर swelling होता है तो अंदर का जो tract होगा वो छोटा हो जाएगा. And this swelling is abnormal. यहाँ पे infection होगा, it can form pus and all. So due to this infection, due to swelling, the overall respiration is affected. And sometimes what happens due to infection, suppose due to bacteria virus infection takes place, here our body starts secreting mucus to prevent that infection, and that mucus leads to severity again. Mucus form होगा, we say that in common words we can say cough, that is congestion in chest. It is due to bronchitis. Now see, what are the causes of bronchitis, that is etiology. Most commonly bronchitis is caused due to virus, most commonly viral infection. Rarely it can be bacterial also, and in very few patients, or you can say few patients, it is caused by due to smoking or different types of pollutant. But सबसे main जो reason है जिसके वजह से bronchitis होता है, that is viral infection, and that virus mostly belongs to influenza family, that is flu virus. And bacteria, there are different types of bacteria which can cause bronchitis, that is chlamydia family and mycoplasma family. And other than this, smoking and air pollution, these pollutants also can lead to bronchitis. Now we know what is bronchitis and we know how it is caused. Now let us see how bronchitis spreads. See, this disease spreads from person to person very easily. Hence I can say this is a type of communicable disease, or I can say it is a type of contagious disease, because ये बहुत easily from one person to other person spread होता है. प्रीवियस दो लेक्चर जो हमने स्टडी किए हैं और प्रीवियस दो डिसीजेस जो हमने स्टडी किए, एस्थमा, एम्फाइसेमा, दे वर नॉन कम्युनिकेबल, वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो रहे थे. पर ये जो डिसीज है, दैट इज ब्रोंकाइटिस, इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज and it easily spreads, same like common cold, running subject like corona. You can see, you can relate this communicable. See, it spreads through droplet infection. Now how droplet infection spreads? See, this type of pattern you have studied in your school time also. Suppose this is a person who is suffering with common cold, or I can say suffering with bronchitis. Whenever this person sneezes or cough, what happens? It releases water droplets in the air. The larger water droplets will fall nearby. जो हल्के वाले छोटे वाले droplets होंगे वो हवा में या air में इस तरह से आगे चले जाएंगे. Now what happens? Suppose I am suffering with bronchitis or common cold, I can say, and if I sneeze, the larger water droplets will fall here. Larger and higher, lighter or the small water droplets will be in the air, and I pass from here.
अब क्या होगा, ये जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एयरबॉर्न हो गए, यहीं पे रहते हैं, और यहाँ से कोई अगर दूसरा व्यक्ति जाता है, if he breathes in, that infection will go into him. मतलब ये वाटर ड्रॉपलेट इतने छोटे होते हैं कि कुछ आवर्स तक ये एयर में भी रह सकते हैं, एंड इट स्प्रेड्स थ्रू वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सेकंड, hence it is an airborne, I can say. Water droplet spreads through air. It also spreads directly by saliva. ना सी वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आ रहे हैं, छींकने से आ रहे हैं, कफिंग से आ रहा है, सो मतलब अपने सलाइवा में भी ये वायरस होगा मोस्टली, इफ इट इज अ वायरल डिसऑर्डर, एंड इट कैन इजीली स्प्रेड थ्रू सलाइवा बाय किसिंग और शेयरिंग डिफरेंट ड्रिंक्स. सपोज मुझे इन्फेक्शन है, मैं पानी पी रहा हूँ और ग्लास अगर कोई सेम दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है, तो सिंस my saliva has been in contact with that surface, it will spread from one person to other. Third है by touching contaminated surface. अगर XYZ पर्सन को ब्रोंकाइटिस है, वो जहाँ पे सो रहा है, जो वो तकिया यूज कर रहा है, जो पिलो यूज कर रहा है, जो बेडशीट यूज कर रहा है, उस एरिया में वो इन्फेक्शन रहेगा. And if that contaminated surface is used or shared by other person, chances are there कि उसके वजह से उसे भी वो infection होगा. So most probable cause of spreading by contact infection is by sharing, you can say by sharing glasses. स्पेक्स नजदीक होते हैं, इन्फेक्शन पॉसिबल है. इफ यू आर यूजिंग फोन्स, नॉर्मली हम जब फोन पे बात करते हैं, दिस सरफेस इज वेरी प्रोन फॉर इन्फेक्शन. और सेम मोबाइल अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है तो इन्फेक्शन वैसे भी स्प्रेड होगा. सो बाय कॉन्टैक्ट सरफेस इट कैन बी इजीली स्प्रेड. डायरेक्ट फ्रॉम स्किन टू स्किन, दैट इज हैंड शेकिंग, हगिंग, इन दैट वे आल्सो इट कैन स्प्रेड. नाउ सी the main cause, or you can say the main etiology is either viral or bacterial. पोल्यूटेंट से भी हो सकता है. अगर पोल्यूटेंट से होता है तो तुरंत तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं दिखेगा. बट अगर ये जो ब्रोंकाइटिस है, अगर ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 6 days. मतलब एक पर्सन के अंदर, सपोज दिस इज अ पर्सन, इसके अंदर ये वायरस अंदर एंट्री करता है. फ्रॉम दैट डे जब उसके बॉडी में सबसे पहला सिम्टम दिखेगा, दैट ड्यूरेशन फ्रॉम एंट्री टू सिम्टम, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. एंड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ब्रोंकाइटिस इज 4 to 6 days. Now suppose a person is suffering with bronchitis, he goes to doctor. How doctor will diagnose that person is suffering with directly he is suffering with bronchitis? The basic diagnosis is general physical examination. Stethoscope से जब डॉक्टर आपके चेस्ट पे स्टेटो रखेगा, सांस लेने के लिए कहेगा, he'll listen a particular sound of congestion in chest. It is a basic symptom that the patient is suffering with bronchitis. Second, अगर जरूरत है, अगर क्रोनिक है, तो उस टाइम पे चेस्ट एक्सरे निकाल के देखेंगे, लंग्स में कितना कंजेशन है चेक करने के लिए. एंड CBC, that is complete blood count. If there is infection in our body, WBC and RBC number are affected. Through that they can detect. So these are the diagnostic tests. So signs symptoms I have divided into 2 parts. एक acute bronchitis के लिए और दूसरा होगा chronic bronchitis के लिए. 2 different पार्ट में हम signs and symptoms स्टडी करेंगे. See, in acute bronchitis, since it is infection to bronchi and bronchioles, तो उसमें inflammation of bronchi होगा, जिसके वजह से due to inflammation the amount of air going in will be affected and the person will feel breathless, that is shortness of breath will be there. And उसके साथ साथ mucus secretion होगा. Yellow mucus is a characteristic feature of acute bronchitis. The person will be coughed up. Coughed up means congestion in chest होगा. उसके साथ he will be fatigued. ना सी फटीग मैलियस का मीनिंग है कि वो पर्सन जो होगा वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा, थोड़ा भी काम करेगा तो उसे थकावट आ जाएगी. व्हाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ एयर गोइंग इन विल बी अफेक्टेड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड विल बी अफेक्टेड. सो बॉडी में क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, और कम होने की वजह से ओवरऑल ईच एंड एवरी टिश्यू विल गेट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से द पर्सन विल फील फटीग एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस इन्फेक्शन देयर मे बी चेस्ट पेन. दिस इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस. सेम सिम्टम्स आर देयर इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. सेम सिम्टम्स होंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में. इसके साथ एडिशन में क्या होगा? फीवर एंड चिल्स. मतलब कंजेशन चेस्ट के वजह से अगर फीवर आ रहा है तो दैट इंडिकेट्स इट इज अ टाइप ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. एंड म्यूकस कलर विल चेंज टू येलोइश ग्रे और यू कैन से ग्रीनिश म्यूकस विल बी देयर एंड चेस्ट discomfort, congestion in chest will be severe. So these are the signs and symptoms of bronchitis. Now what is the treatment of bronchitis? So see, normally antibiotics ही avoid करने होते हैं, पर अगर chronic bronchitis है तो in that case antibiotics are given.
Basically self care is important, taking rest, staying at home, avoiding direct public contact till you get okay. उसके साथ में लोजेंज टैबलेट्स जो होते हैं, इट इज फॉर ड्राई कफ. ड्राई कफ के लिए एलेक्स नाम की भी टैबलेट आती है जो आपको जस्ट आपके जुबान के नीचे रखनी होती है. नॉर्मली इट इज सेम लाइक अ कैंडी टैबलेट. इट विल reduce your coughing and congestion. Best example, strepsils, that type of tablet. Yansets are also used. Non-steroidal anti-inflammatory drug. Important for MCQ. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are also useful in treating bronchitis. उसके साथ में कफ सिरप होगा, वेपराइजर्स होगा जिसे हम वाफ लेते हैं. These all are used in treatment. What are the prophylactic measures, or what you can say, what are the preventions? Avoid direct contact with infected person, quit smoking if you do, take rest, wash hands regularly, and maintain a healthy diet so that your immunity will be strong, and basically this type of diseases directly can be avoided. So this is our third disease, that is bronchitis. So fourth and very important disease in respiratory disorders is pulmonary tuberculosis, which we commonly called as TB. Now you will say why we are calling it as pulmonary tuberculosis, because tuberculosis ये सिर्फ हमारे lungs में नहीं तो body के different organs में हो सकता है. It can affect spine, it can affect vertebral column, it can affect bones or different tissues. Hence here we are going to discuss only related to lungs. Hence it is pulmonary tuberculosis. So pulmonary tuberculosis is a potentially serious infectious disease, that mainly affects lungs. See, TB तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में हो सकता है, but maximum patient, more than 80% of patients are seen they are affected with lungs, and it is a potentially serious, means it is a fatal disease. It can lead even to death. Its etiology, it is mainly caused by a bacteria called as Mycobacterium tuberculosis. Very important for NEET point of view. Same thing we are going to discuss during studying chapter health and disease. So it is caused by Mycobacterium tuberculosis, and it is also spreading through droplet infection. Means it is airborne respiratory droplet infectious disease. Means जैसे हमने पहला वाला डिसीज देखा अभी प्रीवियस वाला ब्रोंकाइटिस, सेम उसी तरह से ड्रॉपलेट्स के वजह से स्प्रेड होगा. इवन इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट सलाइवा कांटेक्ट, बाय किसिंग और शेयरिंग डिफरेंट ड्रिंक्स. इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिसीज. इट कैन इजीली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हेंस इट इज कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, और यू कैन से contagious type of disease. Its incubation period varies from person to person depending upon its immunity. फिर भी उसका जो एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 2 to 12 वीक्स. इंपॉर्टेंट, इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 12 वीक्स. इसका जो प्रीवियस डिसीज जो हमने ब्रोंकाइटिस स्टडी किया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड था 4 to 6 days मैक्सिमम. हियर इट इज 2 to 12 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन. अगर उस पर्सन को टीबी हुआ है, टीबी होता है मतलब एक्चुअली क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली अफेक्ट्स, अभी फॉर एग्जांपल ये जो ब्रोंका है ये लंग्स है. वी नो लंग के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है. इट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन और वी कॉल इट एज प्लूरा. दिस टीबी मोस्टली अफेक्ट्स आइदर प्लूरा और लंग्स इन द एल्वियोलाई. वहां पे क्या होगा, इन्फेक्शन होने की वजह से एक टाइप का फंगल बॉल हो जाएगा या उस वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और वहाँ पे एपिथेलियल हार्ड टिश्यू डेवलप होंगे जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल बी डिफिकल्ट. इट विल फॉर्म अ स्मॉल ट्यूमर, यू कैन से. दैट इज द मेन इन्फेक्शन ऑफ टीबी. सो अगर ये इन्फेक्शन प्लूरा या लंग्स में होता है तो उसे डायग्नोस कैसे करेंगे डॉक्टर? मोस्ट प्रोबेबली एक मोस्ट कॉमन सिम्टम हम स्टडी करने वाले ट्यूबरक्लोसिस में कंजेशन इन चेस्ट होगा, कफिंग होगा और वो पर्सन स्प्यूटम एक्सट्रैक्ट करेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, डॉक्टर विल टेक दैट स्प्यूटम एंड सेंड इट फॉर लैब टेस्टिंग वेदर द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन दैट और नॉट. मोस्ट कॉमनली डन टेस्ट इज sputum test. Second is bronchoscopy. Through camera they look into the bronchi whether there are any infection, any tumors inside due to this bacteria. Then possible another test is chest CT scan. CT scan is computed tomography which will give you exact picture of soft tissues. Lungs के हर sections का हमें इसमें pictures देखने मिल सकते हैं. Then to see how the patient is improving,
chest X-ray can be done, and recently added a new test is there which is called as quantiferon TB Gold QEFT test. It is a simple blood test which directly detects the presence of Mycobacterium tuberculosis in the blood. So here MCQ can come on this part, it is important. Most commonly done test is sputum test, जिससे tuberculosis है ये verify हो जाएगा. अभी देखिए जैसे ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसमा ये डिसीज अगर डिटेक्ट होते हैं तो दे आर नॉर्मली ट्रीटेड विद द मेडिसिन. अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उस पेशेंट को स्ट्रिक्टली हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसको एक अलग से वार्ड में रखा जाता है विच इज कॉल्ड एज आइसोलेशन वार्ड. Now you know isolation ward, quarantine wards recently because हम हर रोज टीवी पे हर रोज यही सुन रहे हैं. जैसे कोरोना के पेशेंट को हम आइसोलेट करके अलग रखते हैं, सेम थिंग ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को भी एक अलग से वार्ड में रखा जाता है विच इज कॉल्ड एज आइसोलेशन वार्ड, जहाँ पे सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स अंदर जाते हुए खुद को कवर करते हैं. मोस्टली दे कवर विद N95 मास्क, बाकी चीजें तो कवर नहीं होती जैसे पीपी किट वगैरह, ये सब कोरोना में लगेगा बिकॉज दिस इज बैक्टीरियल डिसीज. चांसेस क्या है, इट गोज ओनली थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सो दे कवर मोस्टली विद दिस. एंड वहाँ पे उसके जो रिलेटिव्स भी होंगे पेशेंट को, उनको भी मास्क दिया जाता है कि व्हेन यू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद देम एटलीस्ट यू प्रिवेंट योर ओन सेफ्टी. इसलिए उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा अलग रख के. अब देखते हैं कि उसका साइन सिम्टम्स क्या है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. द मेन साइन सिम्टम्स ऑफ टीबी, बैड कफ. बैड कफ मतलब इतनी खांसी होगी और वो खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा होगी. You may have seen advertisements on TV. If a person is coughing more than 3 weeks, chances are there he's suffering with tuberculosis. Bad cough मतलब कफ कंजेशन के वक्त, कफिंग के वक्त उसमें से ब्लड आएगा, स्प्यूटम आएगा और बहुत कंटिन्यूस खांसी होगी. माइनर उसका सबसे जो बेसिक सिम्टम है ड्यूरिंग कंजेशन, ड्यूरिंग कफिंग, उसमें ब्लीडिंग भी होगा. बिफोर व्हेन टीबी वाज न्यू, तब उस वक्त उसका ट्रीटमेंट नहीं था. अगर एक पेशेंट को टीबी होता है तो उसकी डेथ होना लगभग तय था. बट अभी हमारे पास एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, ड्रग्स है, सो वी कैन इजीली क्योर दिस डिसीज. फिर भी ये डिसीज अभी भी बहुत डेंजरस है. सेकेंड वन, चेस्ट पेन. ना से इंटरनल इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में, प्लूरा में, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो चेस्ट पेन भी होगा. कफिंग ब्लड और स्प्यूटम फ्रॉम डीप इनसाइड द लंग. सी नॉर्मल जब हम खांसी करते हैं स्प्यूटम हमें लगता है कि थ्रोट से आ रहा है, पर यहाँ पे खांसी करते वक्त एकदम अंदर से स्प्यूटम आ रहा है. ये पेशेंट को फील भी होगा और सीवियर चेस्ट पेन भी उसके साथ होगा. पेशेंट इज सीवियरली टायर्ड, दैट इज फटीग. वेट लॉस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट. उसे भूख ही नहीं लगेगा, उसका खाना बहुत कम हो जाएगा जिसके वजह से इट विल लीड टू वेट लॉस. इसके साथ में फीवर्स होंगे, चिल्स होंगे एंड मोस्टली दैट पेशेंट विल शो एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट. These are few signs and symptoms which are required for pulmonary tuberculosis जो हमने स्टडी की. Now coming to the treatment of tuberculosis. Tuberculosis का ट्रीटमेंट किसी एक टैबलेट से नहीं होता. इट इज अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें मल्टीपल एंटीबायोटिक ड्रग्स दिए जाते हैं अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन. एंड ये जो ट्रीटमेंट है पूरे इंडिया में इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज कंट्रोल्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम, अंडर द ब्रांड कॉल्ड एज डॉट्स. आपने टीवी पे ऐड देखी होगी. Tuberculosis is treated by the medicine of DOTS. DOTS means directly observed treatment for short course. पहले तो वहाँ एडमिट करके उन्हें शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट दिया जाता है. दैट एडमिशन ड्यूरेशन इज ऑल्सो लॉस्ट. उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को 1 या 1.5-2 साल तक ये टैबलेट्स लेने पड़ते हैं. मतलब इस लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लॉन्ग कोर्स मल्टीपल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, बहुत लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट में डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए. If the patient do not take this medicine continuously, chances are there he'll develop a severe TB which will not be cured. अभी ऐसे क्यों होता है? Let me explain. जब भी देखो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप बीमार होते हो, बुखार आता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे टैबलेट्स लिख के देता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज दैट प्रिस्क्रिप्शन चार्ट ऑफ डॉक्टर. उन्होंने आपका नाम लिखा, यहाँ पे टैबलेट कैप्सूल जो भी है XYZ नेम लिख के दिया और सामने ब्रैकेट में डॉक्टर नंबर ऑफ टैबलेट्स लिखता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 टैबलेट्स लिखे और आपको कहा है कि सुबह शाम आपको 3 दिन तक खाना है. व्हाट इज नॉर्मल पर्सन्स मेंटालिटी? सी वो क्या करेगा, जाएगा, पता है कि बुखार आया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, वो जाके मेडिकल शॉप में बोलेगा ये 6 की जगह 2 टैबलेट दे दो. 2 ही टैबलेट लेगा, खाएगा, दूसरे टैबलेट में ठीक हो जाएगा, तीसरा टैबलेट नहीं लेगा. Now see, doctor is not mad to give you this quantity and this course. He has invested his nearly 7-8 years to become that PG or become that MD medicine. He knows why the 6 tablets are necessary. इसका एक particular course होता है.
क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, आपके बॉडी में बैक्टीरिया है, जब आप पहला टैबलेट लोगे तो पहला टैबलेट उस बैक्टीरिया को किल करने स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से आपके सिम्टम कम हो जाएंगे। दूसरा टैबलेट लेते ही बैक्टीरिया नियरली किल हो जाएंगे, आपके सिम्टम लगभग पूरी तरह से कम हो जाएंगे, आपको लगेगा यू आर बिकमिंग वेरी वेल, नो नीड ऑफ टेकिंग फर्दर टैबलेट्स, बट द बैक्टीरिया इज फुल्ली नॉट किल्ड। जब आप कोर्स पूरा करोगे तभी ही वो पूरी तरह से किल हो जाएगा। इस तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। बट क्या होगा, आपने कोर्स इनकम्प्लीट किया है, सो आपके जो बैक्टीरियाज होंगे बॉडी में वो किल होंगे, बट पूरी तरह से नहीं, कुछ बैक्टीरियाज अंदर रहेंगे एंड दे अंडरस्टैंड हाउ दैट मेडिसिन वर्क्स। अब नेक्स्ट टाइम वापस उस बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार पड़ोगे, सेम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सेम टैबलेट्स देगा, आप सेम 2 टैबलेट्स लेके आ जाओगे। और इस बार जब आप पहली टैबलेट खाओगे, दैट बैक्टीरिया हैज अंडरस्टूड हाउ दैट मेडिसिन वर्क्स, ही विल स्टार्ट फाइटिंग विद दैट टैबलेट। इन सिंपल वर्ड्स आई एम एक्सप्लेनिंग। सो पहली टैबलेट के बाद जितने बैक्टीरियाज मरने चाहिए थे उतने नहीं मरेंगे। सेकेंड टैबलेट लोगे तभी भी बैक्टीरिया उसको फाइट करते रहेंगे। सो 2 टैबलेट लेने के बाद भी आप बीमारी रहोगे, आपका बुखार कम नहीं आएगा। उस वक्त आप क्या होगा कि डॉक्टर के टैबलेट्स अच्छे नहीं, वो डॉक्टर अच्छा नहीं, लेट मी स्विच द डॉक्टर। प्रॉब्लम क्या है, लास्ट टाइम आपने कोर्स पूरा नहीं किया था, इसलिए इस वक्त वो टैबलेट सीधी तरह से काम नहीं करी है। एंड पॉसिबल है इफ यू डू दिस कंटिन्यूअसली दैट you can say that bacteria will develop a resistant to that medicine, and once it develops resistant to that medicine, वो tablets आप फिर 1 टैबलेट खाओ या 100 टैबलेट खाओ, वो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। It is an example how it develops resistance. Now talking about antibiotics, we have very few antibiotics. First generation, second generation, third generation, जितने antibiotics है हमारे पास 3 जनरेशन में हमने उसको डिवाइड किया है। 3 जनरेशन एंटीबायोटिक है। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स आर दी बेसिक एंटीबायोटिक्स विच आर प्रिस्क्राइब। उसके बाद वो अगर हील नहीं होता है तो हम सेकंड देते हैं, वो हील नहीं होता तो हम थर्ड देते हैं। अब क्या होगा, नॉर्मली जब हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट देते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन पर्सन्स इम्यूनिटी एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपने टीबी का कोर्स इनकम्प्लीट किया, पॉसिबल है कि समझो आपको ये 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दिया हुआ है, आपने उसका कोर्स इनकम्प्लीट किया, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होगा। और उसके बाद वापस जब आपको टीबी होगा, डॉक्टर को पता है कि ऑलरेडी हाईएस्ट डोज 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दिया है, 4th जनरेशन एंटीबायोटिक नहीं है हमारे पास, अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, सो उसके आगे वाले ड्रग्स ही अवेलेबल नहीं है। दैट टाइप ऑफ टीबी इज कॉल्ड एज MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें पेशेंट का क्योर होना लगभग नामुमकिन है। मीन्स वेरी फ्यू पेशेंट सर्वाइव इन दिस। मतलब ट्यूबरक्लोसिस सिंपल डिसीज है, बट इफ यू डू नॉट टेक कंप्लीट मेडिसिन यू क्रिएट कॉम्प्लिकेशन इन इट। अब नॉर्मली जब हम नॉर्मल किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स मोस्टली अवॉइड गिविंग एंटीबायोटिक, और इवन हमें भी एंटीबायोटिक लेना अवॉइड करना चाहिए। और जब भी हम लेते हैं तो स्टार्ट ऑलवेज विद 1st जनरेशन, हेंस जब डॉक्टर देते हैं तभी वो लेना है और इसका कोर्स पूरा करना है। इफ यू कीप ऑन कंप्लीटिंग योर कोर्स, दिस मेडिसिन विल बी एक्टिव फॉर लाइफ टाइम। सपोज किसी एक यू कैन से फॉर सर्टेन टाइम लिमिट आप इस ड्रग को रेजिस्टेंट हो जाते हो, टीबी की वजह से नहीं, किसी और डिसीज की वजह से, तो वी हैव 2nd जनरेशन। इस पे रेजिस्टेंट होते हो तो वी हैव 3rd जनरेशन, और अगर इस पे रेजिस्टेंट होते हो तो वी डू नॉट हैव एनी मेडिसिन। सो व्हेन यू आर टेकिंग एंटीबायोटिक्स, फर्स्टली अवॉइड एंटीबायोटिक्स, और जब जरूरत है उस वक्त आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर। और बहुत सारे इश्यूज में क्या होता है, जो BHMS या BAMS डॉक्टर्स होते हैं, इन देयर पोर्शन एंटीबायोटिक्स कम्स अंडर फार्माकोलॉजी, वो सब्जेक्ट उनके लिए नहीं होता है, तो वो मोस्टली जनरल प्रैक्टिशनर डायरेक्टली सेफेक्साइन फैमिली, दैट इज 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन टैबलेट्स देते हैं, और पेशेंट को कोर्स पूरा नहीं करता है। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग इन फ्यूचर। So basically avoid antibiotics, and whatever doctor is giving, complete that course. अगर ये mistake आप TB के पेशेंट में करते हो तो he will develop MDR TB, that is multi drug resistant TB, which is very severe. So this is about treatment of TB. How we can prevent prophylaxis of TB. Actually prophylactic treatment of TB is very rare, you can say, जो पेशेंट में हुआ है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है बट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। वैक्सीनेशन से हम टीबी अगर ये कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और होने के चांसेस कम कर सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल सो दैट पीपल नो हाउ टीबी इज कॉज्ड,
वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ टीबी इज स्मोकिंग. सो स्मोकिंग अवॉइड करना है. स्मोकिंग की वजह से लंग की इम्यूनिटी वीक होगी, जहाँ पे बैक्टीरियल अटैक इजीली हो जाएगा. अगर समझो कोई पेशेंट एडमिट है जिसको टीबी है, वहाँ आप उन्हें मिलने जा रहे हो या आपके रिलेटेड या आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, तो कंपल्सरी यूज ऑफ मास्क एंड रेस्पिरेटर्स, दैट इज N95 टाइप ऑफ मास्क. यूज ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क. अगर मिल्क पास्चराइज नहीं करते तो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया, इट कैन कॉज बोवाइन टीबी. टू अवॉइड दैट यू हैव टू यूज बेसिकली पास्चराइज्ड मिल्क. वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट टीबी. आई हैव टोल्ड फ्यू थिंग्स. डिटेल में हम हेल्थ एंड डिसीज में वापस स्टडी करने वाले हैं डिसीज को. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. फॉर नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस. थैंक यू.